Hello friends, welcome to my channel Science on Earth. Today the topic for discussion is chemical effects of electric current. So please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for notifications. So we will start the topic. We will start this topic, which is chemical effects of electric current. Uh, Now, what are good conductors of electricity? Good conductor of electricity means the materials that allow electric current to pass through them. They are very good conductor of electricity. It means the materials that allow electric current to pass through them easily. We can add this word. So they are called good conductor of electricity. We can give some examples like copper and aluminium. They conduct electricity. All of us know that in some electrical appliances or in some electricity fittings we use copper because this is the good conductor of electricity. But as the copper is very expensive, so in place of copper we generally use aluminium wires. ये जो कॉपर होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है. ऑल्दो दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दिस इज टू एक्सपेंसिव. सो इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, एज फॉर एग्जांपल वी सी इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑन द रोड, लैम्प पोस्ट से जो कनेक्टेड होते हैं वायर्स, तो उनमें ये एल्यूमिनियम वायर्स यूज करे जाते हैं बिकॉज these are good conductor of electricity, so they will allow the electricity to pass through them very easily. Now on the other hand, there are certain materials that are called poor conductor of electricity. It means the materials which do not allow electric current to pass through them easily, they are called poor conductors of electricity. Examples are rubber, plastic and wood do not conduct electricity. As you know, there are certain wooden handles in cooking utensils. जो हमारे कुकिंग के जो यूटेंसिल्स होते हैं किचन के अंदर, जो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो पॉट्स हैं जिनके अंदर कुकिंग होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वुडन हैंडल्स होते हैं. Either these handles are made up of wood or they are made up of plastic, or in some cases there is use of rubber. So the reason is that all these things, they are poor conductor of electricity. When we heat this utensil, suppose we are cooking something in this utensil, then we will put the pot on gas or some burner. So we are heating it, so the whole pot will get heated. ये पूरा जो यूटेंसिल है, बर्तन है, वो हीट हो जाता है. और if we touch this hot utensil, then it will burn. So to avoid this thing, the handles of these utensils, they are made up of wood. तो इसमें क्या है कि जो wood है, that is poor conductor of electricity, so the heat will not pass through it. तो इससे हमें क्या आसानी होगी कि उसको हम आराम से पकड़ के उसको हैंडल कर सकते हैं. तो इसलिए जितने भी हैंडल्स हैं ये सब पुअर कंडक्टर्स के बने हुए होते हैं. आइदर वी कैन यूज वुड और प्लास्टिक फॉर दिस पर्पस बिकॉज दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं. इसलिए जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उसमें जितने भी हैंडल्स होते हैं वो सब प्लास्टिक या वुड के बने हुए होते हैं. टू टेस्ट whether a liquid allows electric current to pass through it or not,
we can perform the following experiment. अब पहले हमने इसमें डिस्कस किया जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, एज फॉर एग्जांपल जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, तो वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की या पुअर कंडक्टर हैं, तो उनका डिस्कशन हुआ. नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर अ लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर और इट इज अ बैड कंडक्टर. अब हमें लिक्विड में पता लगाना है कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है. तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट हमें सेट करना होगा. वी विल टेक अ ग्लास बीकर. ये बीकर्स होते हैं जो लैब के अंदर, तो वो हम लेंगे और उसमें कुछ लेमन जूस उसके अंदर फिल कर लेंगे. नाउ यू टेक अ बैटरी और अ सेल, one bulb and 2 copper wires. All these things are required for this experiment. Now set the experiment as shown in the figure on your screen. इसमें इस तरह से ये सेटअप कर लेंगे कि जो बैटरी है तो उससे ये दोनों कॉपर वायर्स कनेक्टेड होंगे. One end of a copper wire is connected to one terminal of the battery and the one end of other copper wire is also connected to other terminal of the battery. Now in between these two ends of the terminal there are two things. One is a bulb that is put in the circuit, and these two ends of the two copper wires, they are dipped in the lemon juice solution. So this is the setup for experiment. इसमें हमने एक बैटरी ले ली और उसमें एक कॉपर वायर का एक एंड उसके एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे कॉपर वायर का एक एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है. एंड in between these two wires there is one bulb and one beaker which is filled with lemon juice, जिसके अंदर lemon juice है. Now this experiment is set. Now we will pass the electric current through this circuit. अब ये सर्किट कंप्लीट है. इसमें एक बल्ब है बीच में, एक बैटरी है और एक बीकर है जिसमें लेमन जूस है. नाउ दिस सर्किट इज कंप्लीट. नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट. अब वो जो बैटरी है उसे ऑन कर देंगे और वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसमें वो उसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी. तो अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, नाउ द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज. करंट उसमें फ्लो कर रही है, वो कैसे पता लगेगा कि जो बल्ब है ना हमारा वो ग्लो करेगा, वो उसमें लाइट आ जाएगी. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. Now I will explain the whole thing. Suppose the liquid which is filled in the beaker is a good conductor of electricity. It means electric current will start from one terminal of the battery, then it will travel through the copper wire and will enter into solution. It will pass, it will cover some distance within the solution, then it will enter on the other end of the copper wire, then the current will go towards the bulb and after bulb it will go to the other terminal of the battery. So this is the complete path which is traveled by the electricity. कैसे ये complete हुआ? एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हुई, उसके बाद वो कॉपर वायर में गई, then it enters into the solution and covers some distance within the solution, then it goes into the other copper wire, then through this copper wire it goes into the bulb
and after bulb it goes towards the other terminal of the battery. So this is the complete circuit. Now if the given liquid is a good conductor of electricity, then it will allow the electric current to pass through it and the circuit will be complete and the bulb will glow. On the other hand, if we put some liquid that is a bad conductor of electricity, then what will happen? The current starts from one terminal of the battery and it will travel through the copper wire. Then it will try to enter into liquid, but that liquid is not allowing the current to enter into it because that is a bad conductor. अब वो बैड कंडक्टर है तो वो इस करंट को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने दे रहा है, अपने अंदर से इसको पास नहीं होने दे रहा है, तो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी रुक गई एंड सर्किट इज नॉट कंप्लीट एंड इन दिस केस बल्ब विल नॉट ग्लो क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंची ही नहीं. तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एक जो कोई भी लिक्विड जो हमें टेस्ट करना है कि वो बैड कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है, तो उसको हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. अब ये जो बल्ब है ये ग्लो क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू हैव सीन that there is a very thin filament in the bulb. एक बहुत पतला सा एक thin wire होता है जो coiled होता है. किसी भी बल्ब के बीच में देखो तो एक coiled wire होता है जो बहुत thin होता है. That is called as the filament of the bulb. This filament it is made up of a bad conductor or it is called resistant wire. ये एक रेजिस्टेंस वायर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के जो पैसेज है उसके बीच में एक हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट. बिकॉज दिस इज द बैड कंडक्टर और इट इज ए रेजिस्टेंस वायर, सो इट क्रिएट्स रेजिस्टेंस in the path of the electricity, and when it creates resistance then heat is produced, and due to this production of heat the bulb starts glowing. So मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया कि जो बल्ब है वो क्यों ग्लो करता है. बीच में जो उसके फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर, और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो रास्ता है उसके बीच में एक रुकावट पैदा करता है, हिंड्रेंस. तो उससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस हीट दैट फिलामेंट और द बल्ब स्टार्ट्स glowing. So this is the reason the bulb glows due to the heating effect of the current. The filament of the bulb is heated to a very high temperature and it starts glowing. If current in a circuit is very weak, now there is a difference in two cases. One case is when the bulb glows very bright, and other case is, दूसरा क्या केस है कि जो बल्ब है वो ग्लो तो हो रहा है लेकिन बहुत ही एक डिम सी लाइट है उसके अंदर. तो ये दो अलग अलग केसेस क्या हैं? ये जो बल्ब है जब ये बहुत ब्राइट लाइट इसमें से निकलती है तो इसका क्या रीज़न है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो बल्ब में से पास हुई है तो वो बहुत ही इंटेंसिटी उसकी या बहुत ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास हुई है. और ये इलेक्ट्रिक करंट आई कहाँ से है? ये उस सॉल्यूशन में से ट्रेवल करके आई है. इट मीन्स दैट सॉल्यूशन अलाउड द करंट टू पास थ्रू इट वेरी इजीली. इसका मतलब उस सॉल्यूशन ने पूरी करंट को अलाउ कर दिया अपने अंदर से निकलने के लिए, और वो पूरी करंट
एक स्ट्रॉन्ग करंट वो एंटर हुई बल्ब के अंदर और उससे एक बहुत ही ब्राइट लाइट प्रोड्यूस हुई. इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज a good conductor of electricity. On the other hand, suppose bulb is glowing very dim, बहुत dim light है, तो इसका क्या मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, a weak electric current is passing through the bulb. And why this current is weak? Because that solution, जो करंट के ट्रेवल वाला पूरा जो इसका रास्ता है, पाथ है, उसके बीच में सॉल्यूशन का भी तो है ना एक छोटा सा पैच. तो अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली पास नहीं करेगा तो थोड़ी सी करंट पास हो पाएगी. और ये जो एक वीक करंट है, जब ये आएगी बल्ब के अंदर तो वो जो बल्ब है उसमें लाइट आएगी लेकिन बहुत डिम लाइट आएगी. तो डिम लाइट ऑफ द बल्ब shows that solution is a weak, is a poor conductor of, either it is a poor conductor of electricity or this is a bad conductor of electricity. In case of bad conductor of electricity, the bulb will not glow, उसमें लाइट होगी ही नहीं. तो ये पूरा ये प्रोसेस है और इस एक्सपेरिमेंट से हम कोई भी लिक्विड लेके और उसको चेक कर सकते हैं वेदर दिस इज ए गुड कंडक्टर और दिस इज ए पुअर कंडक्टर और इट इज ए बैड कंडक्टर. नाउ वी विल डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज: गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. बैड वो होगा जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से निकलने के लिए. तो ये होता है कि if the current passing through the liquid is very weak, then we can use, in this case, अगर हमें बहुत वीक करंट पास हो रही है किसी लिक्विड में से और वो उससे ये जो बल्ब हमने उसमें लगाया है वो ग्लो नहीं हो रहा, उसमें कोई लाइट नहीं आ रही है, तो हम एक और तरीके का एक टेस्टर यूज कर सकते हैं. In place of this bulb, we can put a magnetic compass needle. ये एक राउंड सा एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप होता है राउंड, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है. And when an electric current is passed through a wire, then around this wire a magnetic field is produced. And due to the production of this magnetic field, the compass needle shows deflection. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन वायर्स के अंदर से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, then this needle will show deflection. और इस टेस्टर को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो कंपास निडल वाला टेस्टर है ये एक बहुत ही वीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है. वो जो बल्ब है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए होती है तब वो ग्लो करता है. ये जो कंपास निडल वाला टेस्टर है इट डिटेक्ट्स इवन ए वेरी वीक इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस कैन बी यूज्ड इन दीज प्लेसेस. अब एक चीज़ है इसमें कि ये हमने टेस्टर उनकी बात करी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है लिक्विड्स के अंदर तो ये कैसे होता है? उसमें ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको ले जाने के लिए कुछ चार्ज्ड एटम्स या उनको हम आयन कह सकते हैं. जब एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है देन दिस एटम इज कॉल्ड एज आयन, तब उसको हम आयन कहते हैं. तो ये जो आयन्स होते हैं, ये चार्ज वाले जो आयन्स होते हैं ये कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. ये इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ we will understand this thing by discussing the structure of atom. As all of us know
Then in an atom there is a nucleus and at the center, and this nucleus contains protons and neutrons. There are certain orbits around it which contain electrons. अब बीच में इसमें न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड particles, and neutrons, they are neutral particles. It means they are not having any type of charge. They are not having plus or minus charge. They are neutral. So around this nucleus there are circular paths. सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं इसके चारों तरफ, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. Some atoms lose electrons and they become positively charged ions. So how it happens? ये इसी पॉइंट पे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. देखो, कोई भी अगर एटम है उसमें एक चीज आप नोट करना कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है that is always equal to the number of electrons. Protons are inside the nucleus, so count the number of protons and count the number of electrons. So then you will see that the number of both these particles are equal. It means the positive charge of protons, it neutralizes the negative charge of the electrons, and negative charge of the electron neutralizes the positive charge of the proton. So the result is that nothing is left. Nothing means कोई भी जो चार्ज है, either positive or negative, is not left. वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बचा नहीं. जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है प्रोटॉन्स के ऊपर और जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं चार्ज को. और जब कोई चार्ज ही नहीं बचा तो जो एटम है वो पूरा, कोई भी चार्ज उस पे नहीं होता, एंड दैट इज न्यूट्रल. वो न्यूट्रल होता है एटम. नाउ सपोज दैट एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन. कोई भी एटम है, मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कोई भी. सपोज वन एटम इज हैविंग 2 electrons and 2 protons. So these are equal in number. So both will neutralize each other and the atom is neutral at this time. Now suppose it gives out 1 electron. Then what is the picture? अब क्या position है? 2 तो हैं protons और 1 है electron. तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रोटॉन के चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज बच गया, उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा. तो वो एक पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ जाएगा. नाउ दिस एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम. ये एक एटम बन गया जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है. नाउ टेक अदर केस. Suppose the same atom which is having 2 protons and 2 electrons, it gains 1 electron. अब ये कहीं बाहर से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. अब इसमें जो ये जो पोजीशन है, जरा इसको देखो, इसमें क्या है. 2 प्रोटॉन्स हैं, there are 2 protons and 3 electrons. So the charge of 2 electrons is neutralized by 2 protons and 1 electron is left without neutralization. Then what will happen? The negative charge of this electron will appear on this atom. So this atom will be now negatively charged atom. तो इस तरह से ये जो एटम्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं. Either they gain 1 electron or 2 electrons or they lose electrons.
So by these two processes they become positively charged and negatively charged atoms, and these charged atoms they are called as ions. इनका नाम फिर चेंज हो जाता है. These are called as ions. So these charged ions, they are responsible for the conduction of electricity. They will work as the carrier of electricity. जैसे कि एक कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है किसी बिल्डिंग का, उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल जो कैरी करते हैं वो लेबरर्स होते हैं. वो इसी तरह से जो चार्ज्ड आयंस हैं दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स कोई भी लिक्विड अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उस लिक्विड में से होके पास हो, then there should be the presence of some charged ions. उसमें कोई ना कोई चार्ज्ड आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, वही उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे. सो दिस इज द मेन रीज़न. मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ तक जो इसका रीज़न था वो क्लियर कर दिया. नाउ दिस डिस्टिल्ड वाटर, it does not conduct electricity, but when we add some acid then it has free ions. अगर एसिड उसमें डाल देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, तो सपोज वी हैव एडेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then this acid will be dissociated into hydrogen ions and chloride ions. तो इस एसिड के उसमें मिलाने से क्या हुआ कि ये एसिड डिवाइड हो गया, बीच में जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज ब्रोकन एंड इट इज डिसोशिएटेड इनटू प्लस और द पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड chloride ions. These are free ions. Now they will act as a carrier of electricity. अब ये काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करने का. इसीलिए अगर डिस्टिल्ड वाटर में कोई एसिड मिला दें, कुछ ड्रॉप्स, या कोई सॉल्ट मिला दें जो प्रोड्यूस करता हो फ्री आयंस, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, then the same distilled water which was not allowing the electricity to pass through it, that will start allowing the electricity to pass through it. तो ये एक कोई भी एसिड या सॉल्ट मिलाने से कोई डिस्टिल्ड वाटर या ऐसा लिक्विड वो एक गुड कंडक्टर बन जाता है. नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by rainwater. As we know that rainwater has certain acids and salts in it, so it conducts electricity. Then pure water, इसके अंदर पहले से ही कुछ मिक्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर में से आके रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. तो ये एक कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का. एसिटिक एसिड, this is a weak acid. You know that this acidic acid is present in vinegar we use for preparing food items. So this acetic acid is a weak acid, and weak acid means it does not fully ionize in the solution, and less ionization means less total amount of ions in the solution. अब मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दे आर द आयंस, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड. अब ये इसको क्यों कहा गया है कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है? इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में या किसी भी उसमें, तो ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होती. आयोनाइज मीन्स आयंस में डिवाइड नहीं होती. कुछ मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के डिवाइड होते हैं आयंस में, कुछ नहीं होते. इट मीन्स इट डज नॉट फुल्ली आयोनाइज. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वीक एसिड.
तो टोटल अमाउंट ऑफ जो आयंस है ना इसके अंदर वो बहुत कम होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है कि जो आयंस हैं यही वर्क करते हैं एज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब नंबर ऑफ आयंस कम होगा तो वो चीज़ जो है अपने अंदर से उसका कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का उसमें से कम होगा। तो इस वजह से एसिटिक एसिड एक वीक होती है एसिड। नाउ we will discuss a process which is called as electrolysis. Electrolysis is the process in which a substance in the liquid state gets decomposed into its constituent ions on passage of electricity. तो इसमें मैंने ये जो पॉइंट है इसको पहले काफ़ी इसको एक्सप्लेन अभी किया है कि suppose a substance which gets dissociated into ions in its molten state or when dissolved in water, other solvent and conducts electricity is called electrolyte. अब इसको मैंने अभी एक्सप्लेन करा था कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें अगर HCl हम ऐड कर दें तो ये डिसोशिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन, नेगेटिव आयन क्लोराइड। तो ये डिवाइड हो गया, डिसोशिएट हो गया और उसके बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसी तरह से NaCl का एग्जांपल ले लो। NaCl इज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सो व्हेन दिस सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन वाटर देन it is divided into sodium ions, these are positive ions, Na plus, and Cl ions which are negatively charged ions, these are chloride ions. ये डिवाइड हो गए और इसमें बन गया ये दो तरह के चार्ज्ड आयंस बन गए। तो ये अब एज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेंगे। तो जो ऐसे कोई भी सब्सटेंस एसिड्स हैं या सॉल्ट्स हैं जिनको अगर हम वाटर के साथ ऐड करते हैं और उनके ऐड करने से जो वाटर है वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें क्या रीज़न है? ये जो चीज़ें हैं एज फॉर एग्जांपल HCl और NaCl, दे डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, one positive ion, other is negative ion, and when these two charged ions are produced then they act as the carrier of electricity, and these substances they are called as electrolytes. An electrolyte in water or any other solvent breaks down into positive or negative ions, and now in this process, suppose we want to show what is electrolysis, then we will perform one experiment, and there we will use plates that are partially immersed in the solution during electrolysis, and these are called as electrodes. The electrodes should be made up of good conductor of electricity like copper and graphite. ये मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ जिसमें हम ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस उसको हम शो कर सकते हैं। सो वी विल टेक सम कंटेनर और बीकर। नाउ वी विल पुट टू इलेक्ट्रोड्स इन इट। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये रॉड्स होते हैं या प्लेट्स इनको कह लो आप, और ये किसी गुड कंडक्टर के बने हुए होते हैं। आइदर वी कैन यूज कॉपर और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर होता है। द रॉड्स और द इलेक्ट्रोड्स विच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। अब दो रॉड्स लिए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगा बैटरी के उसका नाम होता है एनोड, and that connected to the negative terminal is called cathode. तो अब सपोज करो कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर की H2O. Now this H2O will break down into hydrogen and oxygen. अब कैथोड जो है माइनस
वाला जो इलेक्ट्रोड है उस पे क्या रिएक्शन होगा, वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम, दे विल टेक 2 हाइड्रोजन एटम्स, they will form hydrogen gas, means 2 electrons, so हाँ 2 electrons इसमें से माइनस हो जाएंगे, they will produce हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, और ये जो है OH, तो इसमें इससे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब ये लेगा, ये प्लस हो जाएंगे इसमें, then it will produce O2 and H2. So this is the complete reaction. In the same way, the electrolysis of sodium chloride is shown by these equations. NaCl will break down into Na and Cl. So at cathode, Na plus it is changed into Na, and Cl, that is changed into Cl2. Now the uses of electrolysis. ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? They are used in the preparation of ornaments which appear to be made of gold, but actually they are made of certain other metals. ये कुछ दूसरे मेटल्स से बने हुए होते हैं. Suppose somebody wants to take one ornament which is not made up of gold or silver, but because these are too expensive, अगर वो गोल्ड और सिल्वर का लेगा तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, तो किसी चीप मेटल के ऊपर अगर हम गोल्ड या सिल्वर की एक लेयर उसके ऊपर अप्लाई कर दें, then it will appear that it is made up of gold or silver. So ornaments which appear to be made of gold but actually they are made of certain cheaper other metals, these with the repeated use of this ornament, the shining of the gold wears off. It reveals that there is silver or some other metal beneath it. उसके बाद क्या पता चलता है कि इसके नीचे या तो सिल्वर है या कोई दूसरा चीप मेटल है, उसका वो ऑर्नामेंट बना हुआ है और उसके ऊपर एक लेयर गोल्ड की ऊपर अप्लाई की गई है, और वो जो है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ही उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन होता है. सो दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इन दिस एग्जाम्पल द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर और अदर मेटल, but there is a coating of gold over it. In this case, a metal has a coating of another metal. Now we will study how layer of one metal can be deposited over another. This is done by the process of electroplating. This is called as electroplating. The process of depositing one layer of any metal on another metal with the help of electricity is called electroplating. ये process electroplating कहलाता है. And to study this method, we will perform this experiment. We will take 2 copper plates of size around 10 centimeter or 4 centimeter. These are the dimensions of copper plates. Take about 300 ml of distilled water. एक बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर लिया, उसमें हम 2-3 टी स्पून्स और टेबल स्पून्स कॉपर सल्फेट मिक्स कर देंगे उसका सॉल्यूशन. तो अब ये बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर. नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. नाउ दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स द सॉल्यूशन मोर कंडक्टिव. इसको अब शायद एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड it will break down into plus and minus ions and they will start conducting electricity.
Now connect the plates to the battery and immerse these copper plates in copper sulfate solution. When we pass current for about 20 or 30 minutes, we see that the copper sulfate solution, it breaks down into copper and sulfate ions. Free copper ions goes to the electrodes connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. अब इसमें जो copper ions हैं, they are positively charged and they move towards the negative rod, negative plate of copper. ये opposite charges में attraction होता है ना, तो जो positively charged जो copper ions हैं, they will move towards the negatively charged copper plate और उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगा. और उसके बाद फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, अब वो जो सॉल्यूशन में से जो कॉपर चला गया और डिपॉजिट हो गया उस रॉड के ऊपर, कॉपर टर्मिनल के ऊपर, वो जो सॉल्यूशन में से जो चला गया कॉपर, वो जो लॉस है कॉपर का, तो वो कैसे पूरा होगा. तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर का, उसमें से सेम अमाउंट कॉपर का वो आके डिसॉल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर. एंड इन दिस वे द अमाउंट ऑफ द कॉपर इन द सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड एंड द प्रोसेस continues without any break. It means copper starts transferring from one electrode to other electrode. Now this electroplating is very useful process. जैसा मैंने बताया कि जो ornaments होते हैं, if they are made up of any cheap metal and we want a gold layer or a सिल्वर लेयर ओवर इट, मतलब वो ऊपर से एक्सपेंसिव दिखाई दें, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से इसको हम कर सकते हैं. सो इन सम इंडस्ट्रीज वेयर मेटल ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, इन मैनी इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम इज वेरी एक्सपेंसिव मेटल. So chromium plating that is done on objects such as bath tabs हो गए वहाँ पे, और जो टैप्स हैं तो उसमें एक क्रोमियम की लेयर होती है ऊपर, और ये बहुत ही शाइनिंग लेयर होती है. किचन गैस बर्नर्स ये भी उसके होते हैं. क्रोमियम का पूरा किचन गैस बर्नर हम नहीं बना सकते बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. जो बाथ टैप्स हैं वो पूरा क्रोमियम मेटल यूज करके नहीं बनाए जा सकते बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो अ लेयर ऑफ क्रोमियम इज applied over any other metal and it will look very shiny. तो ये जो काम है ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू कर सकते हैं. Chromium has a shiny appearance and it does not corrode. It resists scratches. Scratches भी इसमें कम आते हैं. So this is not economical to make the whole object out of chromium, as I have told earlier, because it is very expensive. So a layer of chromium is applied over it, which gives a shiny appearance to the object on which it is applied. So jewelry makers, they electroplate silver and gold layers over less expensive metals and result in silver and gold, but they are less expensive than the original ornament made up of gold and silver. Now we use some food products, they are which are available in टिन कैन्स. मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो टिन कैन्स के अंदर अवेलेबल होते हैं. अब ये जो टिन लेयर है, सो दिस इज सेफ फॉर फूड मटेरियल. ये जो फूड मटेरियल्स हैं
उनके अंदर जनरली कुछ एसिड्स भी होते हैं, किसी में विनेगर पड़ा हुआ है, किसी में साइट्रिक एसिड है, कुछ है। तो ये हर एक मेटल के कंटेनर में आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, बट यू कैन स्टोर इट इन टिन कैन्स। तो अब जो कैन्स हैं वो किसी दूसरे मेटल के बने हैं, उनकी जो इनर लेयर है उस पर टिन की एक सरफेस, एक लेयर बना दी गई with the help of electroplating. So in this is also used for electroplating. ये इसमें भी यूज हो जाता है. So this is all for today. Now please share, like and subscribe to my channel, and please press the bell icon for notifications. Thank you.